This is a recording of the live lecture or session of the topic critical reasoning. So let's get started. Critical reasoning. Let's first understand the meaning. What you mean by critical and what is reasoning? And welcome to Vision MBA. Now, if someone says that there is a critical reasoning question, all of a sudden these questions comes into your head. Strengthening, weakening, this and that, blah, blah, blue. Now, critical means important. Reasoning means analysis. Now, why these questions are asked? These questions are asked because they want to judge your understanding. So let's understand the introduction. Critical reasoning questions judge the analytical comprehension of a situation. What you mean by analytical comprehension? It means a situation is going to be given to you. The examiner is going to give you a situation in a form of a paragraph, and then after understanding the situation, you can answer the question. But the questions are going to be asked in a twisted way. They are going to judge how well you have understood. For example, let's say now I give you the example in Hindi now before I go on to the next point. For example, एक जगह लिखा रहेगा, पैसेज में लिखा रहेगा कि कोविड सिचुएशन की वजह से, बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन, economy is going down and companies are suffering, everyone is suffering. अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जामिनर तुमसे जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, इफ द अबव स्टेटमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी ट्रू, select the option that negates the meaning. Negates means opposing, मतलब कुछ उल्टा बोले. अब मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया, प्लीज अंडरस्टैंड. नाउ हम सबकी जो थॉट प्रोसेस है कि यस भाई कोविड से भाई लोग मर रहे हैं, companies are struggling, everyone is facing loss, and that is the common understanding, and that's true. But then the question is asking you to select an option that says otherwise. मतलब वो तुम्हारे दिमाग को घुमाता है. अब लोग बोलते हैं कि सर स्ट्रेंथनिंग कैसे पता करें, वीकनिंग कैसे पता करें, या एनालिसिस कैसे पता करें. सब पता चल जाएगा अगर आपको उस पैसेज का मीनिंग समझेगा. To be a manager, you must understand the situation to take appropriate action considering all possible outcomes. Now, again, why these questions are asked? Because they want to know, being a manager, do you have that understanding, that ability to understand a situation and take a decision based on that? For example, pharma company want this thing to go on because it is going to give them money. Similarly, government नहीं चाहेगी कि ये problem बढ़े. क्यों? क्योंकि उनका नुकसान है. People are going to abuse whether कोई भी party हो power में या कोई भी country हो. It's all about taking the right decision at the right time. That means, given the situation, you have to take the right decision. That is the answer. It can only be done if you understand the situation correctly. Now, what do you mean by situation? Guys, situation कुछ नहीं है. Situation कुछ नहीं, वो आपका paragraph है. You have to understand it. Now, this thing will also help you for reasoning in other sections, or you can say RC also. Now, types of questions asked in critical reasoning. It is strengthening. That means they will give you a situation and you have to select the option that goes with the situation. Weaken, it means something that is presented, but you have to go against that situation. Contradict it. Assume. Assumption means that you understand the situation and what it could mean. Future में क्या assume हो सकता है? Explain and resolve. Not just you have to understand, explain and give the proper solution. Now, guys, till now, all for all these pointers, strengthen, weaken, assumption, explain, and resolve, no matter what, one thing is important, and that one thing is known as comprehension. Now, what do you mean by comprehension? It means that you must understand what the passage is about. If you are unable to understand the passage, bye bye, tata, it's gone, it's done. Conclusion क्या होता है भाई, कि what is the conclusion? For example, people are usually getting confused in these two things, conclusion and assumption, and then summary and inference. I will not go in depth about these things, but I'm just trying to give you an overview of critical reasoning, and also I'm going to give you a way so that you do not get confused. Summary is basically, in short, you're explaining the same stuff. Info means what you understood. Parallel reasoning means a situation is going to be given to you. You have to find the option that gives you a similar kind of situation. Parallel reasoning मतलब similar type की situation. इंडिया की इकोनॉमी डाउन है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. तो तुम्हें अगर पैरेलल रीजनिंग ढूंढनी होगी तो तुम क्या देखोगे, किसी और कंट्री की भी इकोनॉमी डाउन है बिकॉज ऑफ सम रीजन, मे बी कोरोना वायरस पैंडेमिक और समथिंग एल्स.
So that's how you're going to find the answer. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. हाउ टू कीप इट सिंपल फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस? ओनली वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट मुझे पैसेज समझ में आना चाहिए. जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, अगर पैसेज समझ में नहीं आया, कहानी खत्म हो गई. इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि ये एकदम सिंपल चीज है. मूविंग ऑन. अब कई लोग बोलेंगे सर ये सिंपल चीज कैसे? रुको जरा, सबर करो. Pointers to get the right answer. Now, these are the pointers, guys. I have made these slides, and after these slides, I'm going to give you examples also. Never read the options first. लोग मुझे बोलते हैं कि सर कोई ट्रिक बता दो. सर कोई, आज मुझे एक स्टूडेंट का कॉल आया, मुझे वो बंदा बोलता कि सर आप मुझे ना, मैं सीटी अपेयर कर रहा हूँ और मुझे 120 मार्क चाहिए. बस मुझे 120 मार्क कैसे लाने, आप मुझे बस ये बता दो. मैं क्या जवाब दूं उसे? मैंने बोला कि भाई पहले बात तो मुझे बता कि 120 मार्क क्यों तूने डिसाइड किए. तो मुझे बोलता है सर क्योंकि मैं को 120 मार्क चाहिए एज पर माय कैटेगरी टू गेट जेबीआईएमएस. मैंने बोला सलाम. अरे भाई साहब, मेरे पास कोई फॉर्मूला है क्या कि a+b² दे दूं और वो लगा के तुम्हें आंसर आ जाए? पागलों वाली हरकतें मत करो. हाँ, मुझे पता है यूट्यूब पे लोग बताते हैं कि 1 महीने में जेबी जाएं, 3 महीने में जाएं, 1 हफ्ते में जाएं. मुझे समझ में नहीं आता कि वो चीज 1 हफ्ते वाली, 1 महीने वाली पहले क्यों नहीं बता देते. खैर, never read the options first. Now let me use the blank screen because okay, let's not talk about the names, guys. Let's say कि एक पैसेज दिया हुआ है. Let's say this एक पैसेज दिया होगा, उसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिया होगा और उस क्वेश्चन के ऊपर आपके ऑप्शंस होंगे. ऐसा ही दिखता है. ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू शो यू द क्वेश्चन आल्सो. वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन आल्सो. अब पता है कई लोग क्या करते हैं स्मार्टली? कई लोग बहुत ज्यादा डेढ़ शाणे होते हैं. वो लोग क्या करते हैं, यार 5 ऑप्शन होते हैं यूजुअली. यार आंसर तो इन ऑप्शंस में से है, मैं काम करता हूं पहले ऑप्शन पढ़ लेता हूं, पैसेज में बाद में पढ़ूंगा. पहले मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूं क्योंकि आंसर तो यहीं से आएगा. अगर तुमने ये गलती एग्जाम में क्रिटिकल रीजनिंग में की, तो चाहे तुम कितने भी अच्छे रीडर क्यों ना हो, चाहे तुम कितने भी अच्छे समझने वाले क्यों ना हो, ऑलरेडी हर एक कैंडिडेट थोड़ा प्रेशर में होता है. बिकॉज अगर मैं आपको नॉर्मल एक पैसेज दूंगा रीड करके समझने के लिए, और अगर मैं आपको वही बोलूंगा कि आपको अभी एग्जामिनेशन है, मार्क्स मिलेंगे, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस डिप होता है क्योंकि हम स्ट्रेस में आते हैं. ऑलरेडी वो चीज है. ऊपर से अगर आपने पहले ऑप्शंस पढ़ लिए, तो न्यूट्रल माइंड फ्रेम खत्म हो जाएगा. आप पैसेज कभी समझ ही नहीं पाएंगे. आपको सारे ऑप्शंस, क्वेश्चन क्या करना है वो गड़बड़ हो जाएगी. सो व्हाट यू गोइंग टू डू, नो मैटर व्हाट, you are not going to read the options first. Thank you, Asif. Read the questions but not the options before reading the passage. Now focus on this thing again. अब मैंने आपको क्या बताया था कि what I've mentioned that a passage is going to be given, a question is going to be there. अब वो क्वेश्चन में क्या होगा, strengthen, weaken, assumption, जो भी वो पूछा होगा, फिर ऑप्शंस होंगे. Let's say these are the options. So what I said, rather than reading the passage or the options, if you want, you can read the question first. Why? Because these questions are basically nothing but they'll tell you whether you have to find the strengthening, weakening, assumption or whatever. मतलब तुम्हें ये पता चलता है कि मुझे पैसेज को पढ़ने के बाद वो वाला ऑप्शन चूज करना है जो उस चीज को सपोर्ट करता है, या उस चीज के अगेंस्ट जाता है, या उसकी समरी निकालनी है, या उससे क्या समझ में आता है, इन्फर होता है, या उसको कंक्लूड करना है, या उसको अज्यूम करना है. अब मुझसे ना कई बार लोग पूछते हैं कि सर मुझे ना अजम्पशन और कंक्लूजन में गड़बड़ होती है. गाइस, हम सबको पता है. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अजम्पशन, ओके, वी ऑल अज्यूम इन डे टू डे लाइफ and we also conclude, but conclusion is basically based on facts. Assumption may or may not be on facts, but conclusion is always on facts. Now what are the facts that you can see, observe, notice? Let's not get into that. सीधी बात है यार, एक ही दिन में सब थोड़ी ना पता चल जाएगा. Moving on. Never judge. Okay, always read the option before finalizing your answer. Yes, that's the third point. कई लोग क्या करते हैं, मैंने पहला ऑप्शन पढ़ा, आई यूज पहला ऑप्शन पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, ओके यही मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है, टिक किया, जल्दी में तो है, वैसे ही गए आगे. ये कमिटिंग सुसाइड है. मे बी द फोर्थ ऑप्शन इज बेटर देन द थर्ड वन. थर्ड इज गुड, नो प्रॉब्लम, but fourth was better than the third one. And if you did that,
You dug a grave for yourself. You are not going to finalize the answer before you have not read all the options. Never judge on conclusions without comprehending the situation completely. Now, guys, अगर आपको अंग्रेजी पढ़ के समझ में आती होगी, so this point is self-explanatory. What I'm trying to explain. Never judge on conclusion without comprehending the situation completely. मतलब कभी भी पैसेज को पूरा समझे बगैर आप conclude या assume ना करें. These are the pointers. अब अगर तुम में से कोई ये सोच रहा होगा कि मैं ABC स्ट्रैटेजी दूंगा या मैं कोई चूरन दे दूंगा, तो भाई तुम गलत जगह आए हो. ऐसा कुछ नहीं होता. अब फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन है. क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस आर डिजाइन्ड टू टेस्ट द रीजनिंग स्किल इन्वॉल्वड इन क्रिएटिंग आर्ग्यूमेंट्स, एनालाइजिंग. और ये ना, ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि ये पढ़ने में अच्छी लगती हैं. मैं तुम्हें खुला बता रहा हूँ, एज अ वर्बल फैकल्टी तुम बोलोगे यार ये कैसा बंदा है, खुद ही बता रहा है कि ये बकवास है. ये जो ज्ञान है ना, ये जो ज्ञान है मैं तुम्हें ग्रुप पे भेज दूंगा, और इफ एनीबडी वांट्स इट आई कैन सेंड दिस टू देम. बट ये ज्ञान ना एक्चुअली एग्जाम में काम नहीं आता. एग्जाम में ये चीज काम नहीं आने वाली. एग्जाम में सिर्फ एक ही चीज काम आने वाली. ये लिखा होता है, कई लोग इसको रट रहे होते हैं. अरे काउंटर प्रीमाइज क्या है, कंक्लूजन क्या है, प्रीमाइज क्या है, ये क्या है, वो क्या है. और सिखाने वाला भी क्यूट है और सीखने वाले भी महा क्यूट है. क्यूट का मतलब क्या होता है मुझे अकेले में पूछ लेना जिनको नहीं पता. तो प्लीज आप ये गलतियां नहीं करोगे. आप सिर्फ एक चीज पे फोकस करोगे. मेरा काम था दिखाना, मैंने दिखाया. इस स्लाइड में कई लोग बोलेंगे सर आपने बताया नहीं, तो भाई दिखा दिया. ये चीजें कहीं काम नहीं आती. सिर्फ काम एक ही चीज आएगी, वो होगी ये वाले पॉइंटर्स, कि तुम्हें पैसेज समझ में आना चाहिए. अगर तुम्हें पैसेज समझ में नहीं आया तो चाहे तुम उधर पे प्राणायाम कर लो, चाहे वहां पे तुम उल्टे हो जाओ या कुछ भी कर लो, समझ में आने वाला नहीं है. नाउ गाइज, sessions like this, of course, I'll keep on taking. Now, approach of critical reasoning. Now, people ask me, sir, how to approach? Of course, अब तक तो मैं सब बता चुका हूं, लेकिन वही वाली बात है कि रामायण खत्म होगी और सीता कौन थी. अप्रोच बताओ. तो अप्रोच क्या है? वही है यार. नेवर रीड द ऑप्शंस बिफोर द पैसेज. पैसेज पढ़ने से पहले ऑप्शंस आप क्रिटिकल रीजनिंग का नहीं पढ़ेंगे. कल लोग मुझसे ये भी पूछते, सर मुझे पता ही नहीं चला कि क्रिटिकल रीजनिंग का वो क्वेश्चन था. मुझे गोली मार दो भाई. अगर तुम्हें यही नहीं पता चल रहा क्वेश्चन देख के कि वो क्रिटिकल रीजनिंग है, इसका मतलब तुमने कभी पढ़ाई की नहीं. तो तुम मजे करो यार. फोकस ऑन द मेन पॉइंट डिस्कस्ड और द मेन आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड बाय द पैसेज. समराइज करो अपने दिमाग में उस चीज को. ऑफ कोर्स बोलना अलग है. आई विल शो यू एन एग्जांपल आल्सो. Focus on question what is asked by the question, strengthen, weaken, inference or conclusion. Now here also there is a problem. People do not understand what the question is trying to ask. Strengthen यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे वो चीज तुमसे अलग तरीके से भी पूछ सकता है. वो ऐसा भी पूछ सकता है, select the option that goes with the understanding, select the option that goes against the understanding, मतलब weaken हो गया. Select the option that gives you the understanding as whole in a crisp way, मतलब summary पूछ रहा है. लोगों को वही समझ में नहीं आता. फिर कई लोग रटते हैं कि strengthen का सिनोनिम क्या है, weaken का सिनोनिम क्या है, inference का सिनोनिम क्या है. उन लोग को वर्बल में कभी अच्छा नहीं आने वाला. इसका मतलब आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती, आप इंग्लिश को रटने की कोशिश कर रहे हो, और वो चाहे वर्बल हो या क्वांट हो. आपको जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, दुनिया की कोई ट्रिक, कोई ज्ञान, कुछ नहीं काम आने वाला. वो खैर आपकी मर्जी, आपको जो सही लगे. मूविंग ऑन. अब ये क्वेश्चन है. दिस इज वन क्वेश्चन. नाउ व्हाट आई सेड दैट यू आर नॉट गोइंग टू रीड द ऑप्शंस. अब लोग, क्वेश्चन एक्चुअली ये नहीं है. क्वेश्चन पता है क्या है? क्वेश्चन ये है, और ऊपर का जो फंडा है ये आपका पैसेज है. आप क्वेश्चन पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन पहले पैसेज पढ़ो. In, sorry, not in, a provincial government plans. Now let me solve this question with you, and let me stop the video because your focus is completely on this thing, not on the pictures. A provincial government plans to raise the gasoline tax to give people on incentive to drive less. अब कई लोग यहीं पे हथियार डाल देंगे, सफेद झंडे. अरे सर समझ नहीं आ रहा. भाई सबर करो, आगे बढ़ो.
Reducing traffic congestion in the long term, however, skeptics point out that most people in the province live in areas where cars are the only viable transportation to jobs and stores, and therefore cannot greatly change their driving habits in response to higher gasoline prices. समझ में आ रही है बात? चलो मैं सिमिलर तरीके से बताता हूँ कि गवर्नमेंट चाहती थी, गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया या क्या सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि वो पेट्रोल के दाम बढ़ा देंगे ताकि लोग गाड़ी कम इस्तेमाल करें। क्यों? गाड़ी अगर कम इस्तेमाल करेंगे तो ट्रैफिक कंजेशन कम हो जाएगा। तो इससे अगर पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तो लोग प्राइवेट गाड़ियां, अपनी पर्सनल गाड़ियां कम यूज करेंगे, ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने ये आइडिया दिया है। लेकिन फिर एक स्केप्टिक्स जो होते हैं, जो लोग जो ऑफ कोर्स अपोज करते हैं या आइडियाज पे डिस्कस करते हैं, वो कह रहे हैं कि ये चीज सही नहीं है, बिकॉज लोगों के पास कार के सिवा अपने जॉब्स पे जाने के लिए या कहीं और जाने के लिए और कोई तरीका नहीं है। तो ये प्राइसेस एंड चेंज जो गैसोलीन मतलब पेट्रोल का है, वो उससे ड्राइविंग हैबिट चेंज होने वाले नहीं है। मुझे सिर्फ समराइज करना है, सिंपल तरीके से समझ में आ गया। अब क्वेश्चन देखो, इन लाइट ऑफ द स्केप्टिक्स ऑब्जेक्शन, which of the following, if true, would most logically support the prediction that the government's plan will achieve its goal of reducing traffic congestion? उसने तुमसे गवर्नमेंट के प्लान का स्ट्रेंथनिंग पूछा है, लेकिन देखो कितना घुमा के पूछा है उसने, कितना घुमा के पूछा है कि वुड मोस्ट लॉजिकली सपोर्ट द प्रेडिक्शन दैट द गवर्नमेंट प्लान। कई लोगों को यही नहीं समझ में आएगा कि वो क्या पूछ रहा है। उसके लिए आई होप थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू यू। देन यू रीड दी ऑप्शंस। मैं आपको ऑप्शंस दिए हैं और मैंने आपको बेसिकली आपको चीजें भी बता दी हैं। यू टेक योर टाइम, यू रीड एंड थिंक अबाउट इट। चलो मैं तुम्हें इसका आंसर देता हूं। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। I want you to read the option A and think why that is the answer by comparing it to the other options. Now, guys, this is one example, and I will share other examples also with you.